محترم ناظرین السلام علیکم۔ روشن ٹی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے حدیث مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 وقت نماز پڑھنے والوں کے لیے 5 انعامات۔ رزق کی تنگی دور کر دی جائے گی، عذاب قبر سے محفوظ ہوں گے، نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، پل صراط سے بجلی کی تیزی سے گزرے گا، بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر۔ ضلع میں جوش و خروش کے ساتھ بھوگی تہوار کے انعقاد، خصوصی پوجا و کی گئی پتنگ بازی۔ ریاست کی ڈائٹ کالجز میں مقبوضہ 209 نشستوں کے لیے اقلیتی طلباء کے لیے خصوصی کونسلنگ کے لیے فوجن رکن اسمبلی شکیل عامر نے تلنگانہ مائنارٹی ٹیچرز ایسوسی ایشن کی نمائندگی پر ایڈیشنل ڈائریکٹر کو دی ہدایت۔ ٹی ایس آر ٹی سی چیئرمین باجی ڈی گوردھن و زیڈ پی ٹی سی باجی ڈی جگن کے خلاف بی جے پی قائد دنیش کی جانب سے بے بنیاد الزامات عائد کرنے کے خلاف دھرما راؤ بی آر ایس قائد نے کیا برہمی کا اظہار۔ گروپ 1 نتائج کا اعلان، کل 25,000 امیدواروں کی فہرست ٹی ایس پی ایس سی کی جانب سے کی گئی جاری۔ بالکنڈہ میں ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی کے نام سے منعقدہ کرکٹ ٹورنامنٹ کا آرمور اے سی پی پربھاکر راؤ نے کیا افتتاح۔ شاہ نظام آباد کے 52 صاحب پہاڑی میں واقع مدرسہ فیض القرآن میں تقریب کا انعقاد، نوجوان حافظ قرآن کو پیش کی گئی تہنیت و نئی نسل کو عصری علوم کے ساتھ ساتھ دینی علم حاصل کرنے کی علماء کرام نے کی نصیحت۔ عالمی جونیئر باکسنگ چیمپئن نکھت زرین کی چیف سیکرٹری سے غیر سرکاری ملاقات۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیلی جانب۔ شاہ نظام آباد کے 52 صاحب پہاڑی میں واقع مدرسہ فیض القرآن میں تقریب کا انعقاد، نوجوان حافظ قرآن کو پیش کی گئی تہنیت وہ نئی نسل کو عصری علوم کے ساتھ ساتھ دینی علم حاصل کرنے کی علماء کرام نے کی نصیحت۔ آج شاہ نظام آباد کے علاقے نزہت نگر 52 صاحب پہاڑی پر واقع مدرسہ فیض القرآن پر ایک تقریب کا اہتمام عمل میں لایا گیا، جس میں بحیثیت مہمان خصوصی حافظ لئیق خان، حافظ محمد مختار، کانگریس قائد محمد کریم الدین و دیگر نے شرکت کرتے ہوئے اپنی قرآن مکمل کرنے والے حافظ محمد زاہد کی دستار بندی عمل میں لائی اور حافظ قرآن کے مرتبے کو اپنے بیان کے ذریعے عوام کو واقف کروایا۔ اس تقریب میں ایم اے ولی نیتا عبد الوہاب، عثمان خان، محمد فہیم و دیگر نے شرکت کرتے ہوئے نوجوان حافظ کو مبارکباد پیش کی اور ساتھ ہی مدرسہ انتظامیہ کو اس غریب علاقے میں دینی خدمات انجام دینے پر ان کی تہنیت پیش کی۔ اس تقریب میں مدرسہ انتظامیہ کی جانب سے تمام مہمان خصوصی کو تہنیت پیش کرتے ہوئے ان سے اظہار تشکر کیا گیا۔ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ مدرسہ فیض القرآن جو 52 صاحب پہاڑی نزہت نگر میں جس کا انعقاد 1 مہینہ پہلے عمل میں آیا، اور اس مدرسے کے اندر حافظ محمد زاہد ولد محمد ظہیر صاحب جن کے فرزند کا تکمیل ہوا، اور اس تکمیل کے موقع پر ہمارے شہر کے مشہور و معروف عالم دین حضرت مولانا خضر احمد خان صاحب قاسمی مدد اللہ علی، اور اسی طرح صدر جمعیت علماء حافظ محمد لئیق صاحب تشریف لائے۔ اس تکمیل کے موقع پر دعا بھی ہوئی اور مصلیان اکرام نے بھی اور محلے والوں نے بھی شرکت فرمائی۔
ضلع کامرڈی میں ہونے والے جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے آج مجلس تحفظ ختم نبوت ٹرسٹ کامرڈی کے ذمہ داران و کارکنان نے تمام عاشقان خاتم النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے شرکت کی اپیل کی۔ مجلس تحفظ ختم نبوت ٹرسٹ کامرڈی کے زیر اہتمام جلسہ اصلاح معاشرہ طلباء و طالبات کا تعلیمی مظاہرہ بعنوان جان سے پیارا ایمان ہمارا مسجد فہیم فیروز موضع گرگل بتاریخ 15 جنوری 2023 بروز اتوار صبح 10 تا ظہر منعقد کیا گیا ہے، جس کی صدارت مجاہد ملت حضرت مولانا ابرار الحسن صاحب رحمانی و قاسمی دامت برکاتہم صدر مجلس تحفظ ختم نبوت ٹرسٹ کامرڈی فرمائیں گے، جبکہ مہمان خصوصی کی حیثیت سے تلگو مقرر حضرت مولانا عبد الناصر صاحب صدر جمعیت علماء محبوب نگر و محترم حافظ عبد الرحمن صاحب ناظم ادارہ منیر الاسلام حیدرآباد شرکت فرمائیں گے، جبکہ نظامت مفتی خواجہ شریف مظاہری بخوبی انجام دیں گے۔ علاوہ ازیں اطراف اکناف کے ائمہ علماء ذمہ داران مجلس تحفظ ختم نبوت کی شرکت کریں گے۔ تمام ملت اسلامیہ سے خصوصی درخواست کی جاتی ہے کہ ہونے والے اس پروگرام میں اپنی شرکت کو یقینی بنائیں اور اطراف اکناف کے لوگوں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کریں 9014142314 9396949590۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، آپ کو یہ جان کر بڑی مسرت و خوشی ہوگی کہ مسجد فہیم فیروز موضع گرگل کامرڈی میں کل اصلاح معاشرہ طلباء و طالبات کا دلچسپ تعلیمی مظاہرہ بصدارت مجاہد ملت حضرت مولانا ابرار الحسن صاحب رحمانی قاسمی دامت برکاتہم بتاریخ 22 جمادی الثانی 1444 مطابق 15 جنوری 2023 بروز اتوار صبح 10 بجے تا ظہر انشاءاللہ منعقد ہوگا۔ مہمان خصوصی کی حیثیت سے حضرت مولانا عبد الناصر صاحب مدد ذلہ العالی صدر مجلس صدر جمعیت علماء محبوب نگر کامرڈی و محترم حافظ عبد الرحمن صاحب عالمی جونیئر باکسنگ چیمپئن نکھت زرین کی چیف سیکرٹری سے خیر سگالی ملاقات۔ ارجن ایوارڈ یافتہ عالمی خاتون جونیئر باکسنگ چیمپئن نکھت زرین نے آج BRKR بھون پہنچ کر تلنگانہ کی پہلے خاتون چیف سیکرٹری شانتی کماری سے خیر سگالی ملاقات کی۔ اس موقع پر چیف سیکرٹری نے نکھت زرین کو مبارکباد دی، مستقبل میں مزید کامیابیوں کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ شیلجہ ہاسپٹل کی مثالی طبی خدمات پر اظہار تشکر، ڈاکٹر ٹی شیلجہ و محمد کیف کی شال پوشی۔ شیلجہ ہاسپٹل کی مثالی طبی خدمات پر اظہار تشکر، ڈاکٹر ٹی شیلجہ و محمد کیف کی شال پوشی۔ اس موقع پر مولانا عبدالقیوم شاکر القاسمی جنرل سیکرٹری نے اعتراف خدمات کرتے ہوئے کہا کہ انسانی ہمدردی ہی ڈاکٹر کا اصل پیشہ ہونا چاہیے، چونکہ ڈاکٹری کا پیشہ اگر خلوص نیت و خدمت انسانیت کی غرض سے ہو تو پھر یہ شعبہ جہاں حصول مال و دولت کا ذریعہ ہے، وہی سب سے بڑھ کر نیکیوں کے حصول کا ایک آسان سا راستہ بھی ہے۔ یقیناً ڈاکٹریٹ کا شعبہ انسانی ہمدردی کا شعبہ ہے۔ انتہائی خوشی ہوئی کہ شہر نظام آباد کے ایک پرائیویٹ ہاسپٹل شیلجہ ہاسپٹل کے مینیجنگ ڈائریکٹر محمد کیف خان نے ایک مثالی کام اور قابل تلقیت اقدام کرتے ہوئے اعلان کیا تھا کہ علماء پاس، ائمہ مساجد و مؤذنین حضرات کو اعزاز، مفت علاج و معالجے کی سہولت دی جائے گی، جو یقیناً سراہے جانے والا کام ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ڈلیوری کے لیے جہاں دیگر ہاسپٹلز میں ایک بڑے خرچ تقریباً 30 تا 35 ہزار روپے کی خطی رقم خرچ کرنی پڑتی تھی اور انتظار کی گھڑیاں بھی کاٹنی پڑتی تھی، الحمدللہ شیلجہ ہاسپٹل میں علماء پاس کو نہ انتظار کے لیے وقت نکالنا پڑ رہا ہے اور نہ ہی 1 روپیہ خرچ کرنے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ مکمل اول تاخیر علاج معالجہ، مرض کی تشخیص اور متعلقہ ادویات، یہاں تک کہ اسکیننگ اور بلڈ ٹیسٹنگ و دیگر اہم مراحل سب مفت میں مہیا ہو رہے ہیں اور ہم سب لوگ اس ہاسپٹل کی کارکردگی سے مطمئن بھی ہیں۔ موجودہ دور میں بھی انسانی ہمدردی کے ناطا بلا لحاظ مذہب و ملت انسانیت نوازی کرنے والے اس ڈاکٹر ٹی شیلجہ سے ملاقات کرتے ہوئے ان کی خدمات اور جذبات کو سراہا۔ محمد مشتاق، محمد سمیر، محمد شہباز، محمد حسین، حافظ ابراہیم، مولانا فیروز قاسمی کے ہمراہ ہاسپٹل پہنچ کر ڈاکٹر ٹی شیلجہ اور محمد کیف خان کی شال پوشی و تہنیت کی۔ اس موقع پر مینجمنٹ کا شکریہ ادا کیا کہ
उलमा कराम और मसाजिद के आइमा व मौज़िनीन को तरजीह दी और इनकी ताज़ीम व तौक़ीर का लिहाज रखते हुए बिला किसी मुआवजा ट्रस्ट का जारी किया और पूरी कामयाबी के साथ इसको अंजाम दे रहे हैं। सरकारी अफसरान के लिए VIP हज कोटा खत्म करने का फैसला। हिंदुस्तान में हज कमेटी ने पॉलिसी का जायजा लेते हुए सरकारी अफसरान के लिए VIP कोटा खत्म करने का फैसला किया है। हर साल तकरीबन 1.5 लाख अफराद फरीजा हज अदा करने सऊदी अरब जाते हैं, जबकि अक्सरियत को अपनी बारी का इंतजार करने कई साल का अरसा लग जाता है। मुल्क में हज पॉलिसी के तहत आला सरकारी अफसरान के लिए हर साल 500 सीटें मुख्तस की जाती है, जिसका कमेटी जायजा ले रही है। हज कमेटी के वाइस चेयरपर्सन मनोरी बेगम ने बताया कि हाल ही में VIP कोटा खत्म करने का फैसला किया गया है, लेकिन ये अभी नाफिजुल अमल नहीं हुआ और न ही इस मामले पर फिलहाल कोई इत्तेफाक राय है। मनोरी बेगम और कमेटी के चेयरमैन AP अब्दुल्ला का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की उमूमी सोच है कि ऊंची समाजी हैसियत होने के नाते किसी भी शख्स को खुसूसी मराहत ना दी जाए। इसी के तहत आज़मीन हज के लिए भी VIP कोटा खत्म करने का फैसला किया गया है। कमेटी चेयरमैन अब्दुल्ला ने मज़ीद कहा कि VIP कल्चर अच्छा नहीं है, बिलखुसूस जब लाखों की तादाद में अफराद फरीज़ा हज अदा करने के लिए इंतज़ार में बैठे हो। वज़ीर-ए-आज़म मोदी VIP कल्चर ख़त्म करने की हिमायत में है। इन्होंने बताया कि तमाम मुताल्लिक़ीन के साथ तफसीली गुफ्तगू के बाद नई पॉलिसी तैयार कर ली गई है, जिसका ऐलान आइंदा चंद दिनों में कर दिया जाएगा। तेलंगाना माइनॉरिटी टीचर्स एसोसिएशन वफद की बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर से मुलाकात व रियासत के डाइट कॉलेजेस में मखलूआ 209 नशिस्तों पर अखिलती तलबा के लिए खुसूसी काउंसलिंग के इनेकाद के लिए की नुमाइंदगी, जिस पर MLA शकील आमिर ने एडिशनल डायरेक्टर श्रीनिवास चारी से फ़ोन पर बात करते हुए खुसूसी काउंसलिंग के लिए दी हिदायत। अखिलती टीचर्स एसोसिएशन ने बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर से मुलाकात करते हुए तेलंगाना के डाइट में मखलूआ 209 नशिस्तों को थर्ड फेज के तहत तलबा को दाखिला देने के लिए एडिशनल डायरेक्टर के इल्म में लाने की ख्वाहिश की, जिस पर रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर फौरी तौर पर दिलचस्पी लेते हुए एडिशनल डायरेक्टर श्रीनिवास चारी से बात करते हुए तेलंगाना के डाइट में अखिलती तलबा को थर्ड फेज के तहत काउंसलिंग करने की ख्वाहिश की, जिस पर एडिशनल डायरेक्टर ने अनकरीब थर्ड फेज के तहत काउंसलिंग मुनक्किद करने का इजहार किया। बालकुंडा मंडल के मुकाम पर क़याम अमल में लाए गए वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी कप क्रिकेट टूर्नामेंट का आरमूर ACP प्रभाकर राव ने इफ्तिताह अमल में लाया। बालकुंडा मंडल के मुकाम पर मोहम्मद शाहिद मोहम्मद अनवर के अलावा मामड़ी राकेश रियासती वजीर इमारत व शौरा वेमला प्रशांत रेड्डी के नाम से 90,000 रुपए इनामी रकम से टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद अमल में लाने वाले प्रोग्राम में बहसीत मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करने वाले ACB ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना के तलबा नौजवान को चाहिए कि वो मुल्क और रियासत की तरक्की के लिए अपनी सलाहियतों को उभारते हुए रियासत का नाम रोशन करे, क्योंकि तलबा और नौजवानों में मुख्तलिफ सलाहियतें पोशीदा रहती है और तलबा अपनी सलाहियतों से वाकिफ होकर इनमें महारत हासिल करे, क्योंकि खेलों के जरिए ही इंसान को ज़हनी सुकून और राहत हासिल होती है और इंसान हमेशा सेहतमंद, तंदुरुस्त और तवाना रहता है और इन खेलों के जरिए ही हम अपने मुल्क और रियासत का नाम भी रोशन कर सकते हैं। इसी तरह से आज के बच्चे व नौजवान कल मुल्क का मुस्तकबिल हो और तेलंगाना के नौजवानों में हर तरह की सलाहियतें मौजूद है, सिर्फ और सिर्फ ना इंसाफियों का शिकार है। लेकिन अब वक्त आ गया है हम भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा और हर शोबे में महारत हासिल करते हुए अपने इलाके और इलाके की अवाम की तरक्की के लिए कोई कसर बाकी ना रखे। इसीलिए जरूरी है कि तलबा तालीमी मैदान हो या खेल का मैदान हो, अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाते हुए मुंतखबा मैदान में महारत हासिल करे। इन्होंने कहा कि किसी भी मुल्क व कौम का दारोमदार इस मुल्क के तलबा व नौजवानों पर होता है और जिस तरह के तलबा व नौजवान मुल्क व कौम को हासिल होंगे, मुल्क और कौम इस जानिबी गामजन होगी। इन्होंने तलबा व नौजवानों को तलखीन की कि वो तालीम के साथ साथ अपने पसंदीदा खेलों और मुकाबलों में दिलचस्पी लेने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मंडल TR सदर बदम प्रवीण रेड्डी, बालकुंडा SI गोपी, MPP लावण्य लिंगागौड़, मुकामी सरपंच B सुनीता, नायब सरपंच वहाब, मंडल कॉर्पोरेशन मेंबर फयाज अली, किसान नगर MPTC रामा राजूगौड़, वेलपुर मार्केट कमेटी डायरेक्टर सैयद मजहरुद्दीन, TRS पार्टी के कायदीन गंगाधर गड़म रवि, प्रसाद गौड़, रियाज, अवामी नुमाइंदे व दीगर ने शिरकत। పండుగ సందర్భంగా ప్రతి ఒక్కరికి వారి వారి కుటుంబాలలో మేలు జరిగే విధంగా భగవంతుడు మీ అందరికీ మరి తోడ్పడాలని ప్రేమ స్నేహభావం కలిగి మన బాల్కొండకి శాంతికి ప్రతి ఒక్కరు తోడ్పడే విధంగా ఉండాలని చెప్పేసి ఆశిస్తూ ఉన్న ప్రతి ఒక్క క్రీడాకారులకి बिरकुल मंडल के रायतुनगर देहात में मुक़िम अवाम संक्रांति तक़ारिब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाए।
जिले कामरेड्डी बेरकुर मंडल से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम जो कि दीगर रियासत व मुल्क में सुकूनियत पजीर होने के बावजूद भी कई अफराद संक्रांति त्यौहार की आमद की फौरी बाद रायतू नगर पहुँच कर 3 यौम तक संक्रांति तकारीब शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया जाता है। दीगर मौज़ूआत से आने वाले अफराद इस तकारीब का मुशाहिदा करते हैं। इसी तरह से तालिबात के लिए रंगोली मुकाबला जात का इनेकाद अमल में लाते हुए कामयाबी हासिल करने वालों को जन्मभूमि खुद मुख्तार तंजीम की जानिब से इनामात की फ्राहमी अमल में लाई जाती है। నా పేరు సత్యనారాయణ, అడిషనల్ ఎస్పీగా పనిచేస్తూ ఉంటాను చీఫ్ ఆఫీస్లో. మేము వృత్తి కంటే కూడా ఇక్కడ ప్రవృత్తి రీత్యా మేము జన్మభూమి చారిటబుల్ ట్రస్ట్ మెంబర్స్గా మేము ఇక్కడ పనుల్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తూ ఉంటాం. మేము 2014 సంవత్సరంలో జన్మభూమి చారిటబుల్ ట్రస్ట్ పేరుతోటి ఒక స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థని ఈ ప్రాంతంలో మా విలేజ్ కానీ చుట్టుపక్కల విలేజ్ సంబంధించినటువంటి అనేక అంశాల్లో ఇక్కడ ఉన్న యువతకు కానీ ఇతర వర్గాలకు కానీ తోడ్పడడానికి शहर के सुभाष नगर में वाक़ ZP दफ्तर में विश्वकर्मा एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन कैलेंडर की ZP चेयरमैन डी विठल राव ने रस्मी इजराई अमल में लाई। ZP चेयरमैन विठल राव ने शहर के सुभाष नगर में वाक़ ZP दफ्तर में विश्वकर्मा एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन संगम की जानिब से शाये करदा कबड्डी कैलेंडर की नकाब कुशाई अमल में लाते हुए नया साल तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम की जिंदगियों में खुशहाली लाने की ख्वाहिश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस प्रोग्राम में एसोसिएशन सदर गोपाला कृष्णाचार्य, जनरल सेक्रेटरी राजाराम आचार्य, श्रीधरचार्य, जिले सदर मनोहर आचार्य व दीगर ने शिरकत की। అన్ని కులాలకు ఇప్పుడు ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నాడు ముఖ్యమంత్రి గారు, కానీ నా దృష్టిలో రెండే ఉన్నవారు లేనివారు. మనమంతా ఇంక్లూడింగ్ మైసెల్ఫ్ మనమంతా లేని వాళ్ళ కిందికి వస్తాం. నేను కూడా క్యాస్ట్ పరంగా ఎప్పుడు నేను పుట్టిన అగ్రవర్ణాలు కానీ నా మెంటాలిటీ అంతా आरटीसी चेयरमैन रूरल एमएलए बाजरेडी गोवर्धन व धरपल्ली ZPTC बाजरेडी जगन पर आयद करदा बेबुनियाद इल्जामात की डिचपल्ली मंडल महिला सदर पी गीता ने की सख्त मजम्मत। डिचपल्ली महिला मंडल सदर पी गीता ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि धर्मराम देहात से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ बीजेपी की कारकुनान की जानिब से गुज़िश्ता शब फेसबुक वीडियो के तहत आरटीसी चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली निज़ामाबाद बाजरेडी गोवर्धन व धरपल्ली ZPTC बाजरेडी जगन पर किए गए नामुनासिब तबसरे की सख्त मजम्मत करते हुए एहतजाजी धरना मुनक़िद किया। बातज़ा इन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत के दौर इक़्तिदार में रूबे अमल में लाए जाने वाले कई तरक्याती फलाह स्कीमात से रियासत में होने वाली तरक्की से बौखलाहट का शिकार होने वाले कुछ बीजेपी के कारकुनान अवाम को बनावटी बातों के जरिए वरगलाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अवाम बाशऊर तेलंगाना हुकूमत के इक़्तिदार में रूबे अमल में लाए जाने वाली फलाही व तरक्याती स्कीमात से वाक़फियत रखते हैं। सही वक्त पर सही फैसला करके सबक सिखाने का इजहार किया। ఒకటే మా ధర్మారం గ్రామస్తుల నుంచి ఒకటే అడగదలుచుకున్నాము. అందరి తరఫు నుంచి మండల్ కార్యకర్తల నుంచి కూడా ఒకటే అడగదలుచుకున్నాము. ఫస్ట్ నీ దినేష్ చెంచా గారి దగ్గరికి పోయి ఒకటే మాట ఒకటే అడుగు, అన్నా నిన్ను ధర్మారం ప్రజలు ఇట్లా అడుగుతున్నారు, ఈరోజు నమ్మకంగా మా బాజిరెడ్డి గోవర్ధన్ దగ్గర నమ్మక బంటులాగా ఉన్నవాడివి, నీకు అనుకున్న పదవి రాలేదని आंखों की रोशनी प्रोग्राम हर घर तक पहुंचाया जाए, कलेक्टरों को चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने आंखों की रोशनी प्रोग्राम को कामयाब बनाने की जिला कलेक्टर्स को हिदायत दी है। इन्होंने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की हिदायत पर आंखों की रोशनी प्रोग्राम के इनेकाद के सिलसिले में जिला कलेक्टर्स के साथ टेली कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की। इनके हमरा महकमे सेहत के सेक्रेटरी सैयद मुर्तज़ा अली रजवी, फैमिली वेलफेयर कमिश्नर श्वेता मोहिंती, डायरेक्टर बल्दिया नज़मुनाक सत्यनारायणा और दूसरे मौजूद थे। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने जिला कलेक्टर से खिताब करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव 18 जनवरी को आंखों की रोशनी प्रोग्राम का रस्मी तौर पर आगाज करेंगे। इन्होंने जिला कलेक्टर्स को मशवरा दिया कि 2018 में मुनाकिदा इस प्रोग्राम के पहले मरहले में जितने अफराद की आंखों के मुआयने किए गए, इससे कहीं ज्यादा मुआयने करते हुए इस मरतबा साबिक़ के रिकॉर्ड को तोड़ने की जरूरत है। इन्होंने कहा कि अब तक 15 लाख अफराद में ऐनकें तकसीम की गई। ये ऐनकें प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, अर्बन हेल्थ सेंटर्स के जरिए तकसीम की गई थी। इस प्रोग्राम की अंजाम दही के लिए रियासत भर में 1500 खुसूसी टीमों को तश्कील दिया गया था। इन्होंने कहा कि आंखों की रोशनी प्रोग्राम को हर घर और हर घर की हर फर्द तक पहुँचाया जाए। पुलिस तकर्रुरात के इम्तिहानात की तारीखों में तब्दीली। तेलंगाना स्टेट पुलिस रिक्वायरमेंट बोर्ड ने पुलिस तकर्रुरात के फाइनल इम्तिहानात में 22 तारीख में तब्दीली का ऐलान किया है। 4 इम्तिहानात की तारीखों में तब्दीली की गई है। सब इंस्पेक्टर IT, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, फिंगरप्रिंट्स, कांस्टेबल IT के इम्तिहानात की तारीखों को तब्दील किया गया है। तहरीरी इम्तिहान जो 23 अप्रैल को मुनक़िद होने वाला था, अब 30 अप्रैल को मुनक़िद होगा।
SIIT का इम्तिहान 12 मार्च के बजाय 11 मार्च को मुनाकिद होगा। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फिंगरप्रिंट्स का इम्तिहान 12 मार्च से 11 मार्च कर दिया गया है। कांस्टेबल IT का इम्तिहान 23 अप्रैल के बजाय 30 अप्रैल को होगा। पुलिस रिक्वायरमेंट बोर्ड की वेबसाइट पर तफसीलात फराहम की गई हैं। रियासत के मुख्तलिफ सरकारी महकमों में ग्रुप 1 मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात अमल में लाने के लिए मुनाकिदा प्रीलिम्स इम्तिहान के नताइज की इजराई अमल में लाई गई। రాష్ట్రంలోని పలు ప్రభుత్వ విభాగాల్లో గ్రూప్ 1 పోస్టుల భర్తీ కోసం నోటిఫికేషన్ జారీ చేసిన TSPSC గత ఏడాది అక్టోబర్ 16న ప్రిలిమ్స్ పరీక్ష నిర్వహించింది. మొత్తం 503 పోస్టులకు గాను పెద్ద సంఖ్యలో అభ్యర్థులు దరఖాస్తు చేసుకుని ప్రిలిమ్స్ కు హాజరయ్యారు. OMR షీట్లతో హాల్ టికెట్ నంబర్ను, టెస్ట్ బుక్లెట్ నెంబర్ను సరిగా బబ్లింగ్ చేయని, డబుల్ బబ్లింగ్ చేసిన వారి పత్రాలను పరిగణలోకి తీసుకోలేదని కమిషన్ వెల్లడించింది. మెయిన్ పరీక్ష ఈ ఏడాది జూన్లో నిర్వహించనున్నట్లు తెలిపింది. పరీక్ష విధానాన్ని సంబంధించిన వివరాలను ఈ నెల 18 నుంచి కమిషన్ వెబ్సైట్లో అందుబాటులో ఉంచనున్నట్లు పేర్కొన్నారు. एक नजर वक्फे की ओर। स्कूल और कॉलेजेस वो दीगर खवातीन के लिए खुशखबरी। दीन इस्लाम के अहकामात, मसाइल और बुनियादी बातों का जानना हर मुसलमान मर्द व औरत पर फर्ज है। इसीलिए मदरसा उम्मे हानी लिल बनात खास तौर पर स्कूल व कॉलेजेस और दीगर खवातीन के औकात और मसरूफियात को मद्देनजर रखते हुए कम वक्त और मुतय्यना जामिया निसाब के जरिए मुकम्मल दीनी तालीमी खिदमत अंजाम दे रहा है। एक औरत की दीनी तरबियत 7 खानदान भर की इस्लाह का जरिया है। इसी को मद्देनजर रखते हुए जिसमें नाजरा कुरान, मैं तजवीद और मुंतखब सूरतों को याद दिलाते हुए बुनियादी मसाइल से आगाह किया जाएगा। हिफ्ज़े कुरान, मैं तजवीद और क़वाइद जामिया निसाब के जरिए आलिमा व फाजिला कोर्स, डिप्लोमा इन दीनियात, स्कूल्स, कॉलेजेस और घरेलू खवातीन के लिए मखसूस निसाब के साथ शादी से पहले 1 साला तरबियती कोर्स, स्कूल और कॉलेजेस जाने वाले तालिबात के लिए सुबह 6 बजे ता 8 बजे और बाद नमाजे असर ता नमाजे इशा, घरेलू खवातीन के लिए सुबह 10 बजे ता दोपहर 1 बजे और 1:30 बजे से 3:30 बजे तक। वाज़े रहे कि उम्र की कोई कैद नहीं। मदरसा उम्मे हानी लिल बनात दीनी तालीमी दर्सगाह 16 जनवरी तक मुफ्त दाखिला होगा इंशाअल्लाह। दाखिले जारी है। अकबर कॉलोनी नजद ताज ढाबा, बोधन रोड, निजामाबाद। फोन नंबर 9390544410 और 9618729251। जल्द अज जल्द दाखिला लेते हुए इल्मे दीन से आरास्ता हो। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल। कम आलूदगी वाले शहरों की फहरिस्त में हैदराबाद को 6ठा मुकाम। मुल्क के 131 शहरों का सर्वे। NCPA की ताज़ा तरीन रिपोर्ट में इंकशाफ। शहर हैदराबाद का मुल्क के उन 10 शहरों में शुमार है जहां आलूदगी कम है। हैदराबाद ने मुल्क के 131 शहरों में 6ठा मुकाम हासिल किया है। शहर हैदराबाद में रियल एस्टेट सरगर्मियां उरूज पर पहुंच गई हैं। सनतों का जाल भी फैल रहा है। फिर भी शहर हैदराबाद में PM10 साइज के गिर्द व गुबार की ज़राअत सिर्फ 71.3 माइक्रोग्राम फी क्यूब मीटर है। ये बात नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCAP ने बताई है। मुल्क के सबसे कम फिजाई आलूदगी वाले शहरों की ताज़ा तरीन फहरिस्त सामने आई है। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश का राजमंदरी शहर इस मामले में हैदराबाद से बेहतर है। NCAP ने ये सर्टिफिकेट जारी किया है जिसके मुताबिक जहां फी क्यूब मीटर में 65.65 माइक्रोग्राम आलूदगी है जो मुल्क में राजमंदरी को चौथे मुकाम पर रखती है। और NCAP के मुताबिक आप जानते हैं मुल्क में सबसे ज्यादा साफ सुथरी आबो हवा कहाँ पाई जाती है। शुमाल मशरक़ी रियासत नागालैंड के दारुल हुकूमत कोहिमा की हवा में PM10 साइज के गिर्दो गुबार ज़राअत में 26.77 माइक्रोग्राम क्यूब मीटर है। NCAP ने कहा कि कोहिमा मुल्क का सबसे कम आलूदा शहर है। काबिल जिक्र है कि कर्नाटक के 3 शहर देवनागर, बेंगलुरु और हिबली इस फहरिस्त में सरफहरिस्त है। तमिलनाडु का चेन्नई तीसरे, उत्तर प्रदेश का गोरखपुर 5वां, महाराष्ट्र का नासिक 7वां, शोलापुर 9वां, कर्नाटक का बेंगलुरु 8वें मुकाम पर है। 2.5 PM के ज़राअत के ज़िम्रे में 26.33 माइक्रोग्राम फी क्यूब मीटर के साथ
का साफ तरीन शहर बनकर जम्मू कश्मीर का श्रीनगर शहर उभरा है। हुकूमत हिंद ने मुल्क के 131 शहरों में 2024 तक हवा में PM 2.5 और PM 10 के ज़रात की सतह को 20-30% तक कम करने के लिए 10 जनवरी 2019 को नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCAP शुरू किया है। इस मकसद के लिए अभी तक 6,897 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इसके एक हिस्से के तौर पर ये ताज़ा तरीन रिपोर्ट मुख्तलिफ शहरों में हवा के मियार से मुतालिक है। इसको जारी करते हुए NCAP ने वाज़ेह किया है कि मुल्क के कई शहरों में हवा के मियार को बेहतर बनाने के लिए मज़ीद इक़दाम करने की ज़रूरत है। बोधन उपने असम्बली शेख इलामी ने संक्रांति त्यौहार के पेश नज़र पतंगबाजी करते हुए अवाम को दी मुबारकबाद। बोधन उपने असम्बली शेख इलामी ने संक्रांति त्यौहार के पेश नज़र पतंगबाजी करते हुए अवाम को संक्रांति त्यौहार की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की और कहा कि संक्रांति तकरीबात हमारी ख़दीम और शानदार रवायत की बेहतरीन नुमाइंदगी करने की बात बताते हुए ख्वाहिश जाहिर की कि ये मुबारक मौका हम सब में प्यार, हमदर्दी और भाईचारे के अजीम ख्यालात को उभारने का इजहार किया। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के हम सरखे पर। जिले में जोशो खरोश के साथ भोगी त्यौहार के इनेकाद, खुसूसी पूजा वो की गई पतंगबाजी। रियासत की डाइट कॉलेजेस में मखनुआ 209 नशिस्तों के लिए अखिलती तलबा के लिए खुसूसी काउंसलिंग के लिए बोधन उपने असम्बली शेख इलामी ने तेलंगाना माइनॉरिटी टीचर्स एसोसिएशन की नुमाइंदगी पर एडिशनल डायरेक्टर को दी हिदायत। TSRTC चेयरमैन बाजेडी गोवर्धन व ZPTC बाजेडी जगन के खिलाफ BJP कायद दिनेश की जानिब से बेबुनियाद इल्जामात आयद करने के खिलाफ धर्माराव BRS कायद ने किया बरहमी का इजहार। ग्रुप 1 नताइज का ऐलान, कुल 25,000 उम्मीदवारों की फहरिस्त TSPSC की जानिब से की गई जारी। बालकोंडा में रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी के नाम से मुनाकिदा क्रिकेट टूर्नामेंट का आरंभ ACP प्रभाकर राव ने किया इफ्तिताह। शाहनिजामाबाद के बावन साहब पहाड़ी में वाक़े मदरसा फैजुल कुरान में तकरीब का इनेकाद, नौजवान हाफिज कुरान को पेश की गई तहनीत व नई नस्ल को असरी उलूम के साथ साथ दीनी इल्म हासिल करने की उलमा कराम ने की नसीहत। आलमी जूनियर बॉक्सिंग चैंपियन निखत जरीन की चीफ सेक्रेटरी से खैर सगाली मुलाकात। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मदद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।